Assalamualaikum. This is Madar Ali. I am your biology educator on Overland Biology YouTube channel. You are very warm welcome. You are very warm welcome to this awesome session of Overland Biology YouTube channel. Overland Biology provide you the free content for your entrance exam. This is the lecture number 3. Two lecture was conducted. In those lecture, I had talked about basically what is the biochemistry and the importance of biochemistry. Then I talk about the distinction between organic and inorganic compound and the reason behind the diversity of organic compound. I also talk about how the carbon able to act as a backbone of organic molecule. Then I take isomerism and talk about isomerism. In fact, in last lecture I had talked about importance of isomerism and the types of isomerism in detail. I had talked about the structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism, the isomerism caused due to the change in the structure of atom. Okay, it has 3 different types. It could be chain isomerism, it could be position isomerism, and it could be functional isomerism. In chain isomerism, I had talked about that whenever the chain of the carbon got changed, the resulting isomerism is said to be chain isomerism. Whenever the position of the functional group could get changed, and then in that case we found another kind of isomerism that is called the position isomerism. And if we change the functional group, then we make another kind of isomerism that is called functional group isomerism. Then I talk about isomerism, stereoisomerism. Stereoisomerism has 2 types: optical isomerism and geometric isomerism. In today's lecture, I talk about basically functional group, its importance, and then the very important portion of the unit, that is the biomolecule, their different type. And I also talk about, are all living organism only made up of from organic molecule? Okay, and I also give the answer of that. So अगर जो 2 लेक्चर हो गए हैं उन वो लेक्चर अगर आपने नहीं लिए तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है ओवरलैंड बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, आप जाइए वो लेक्चर लीजिए और उनके नोट्स भी बनाइए। और आज भी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर लेक्चर देख रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं लेक्चर के अंदर जो मैं कहूंगा वर्बली, बोर्ड पर मेंशन नहीं, तो वो आपको मेंशन करनी है, वो आपके रिकॉल में आपको काफी हेल्प करेंगी। ओके, सो लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बताना चाहूंगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से पहले मैं आपको मैटर के बारे में बताना चाहूंगा। मैटर, यू नो, anything which has mass and occupy space, we called it matter. कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह घेरे तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जो कि मैटर को बनाते हैं। अब ये एटम फ्रीली भी पाए जाते हैं, ये एटम्स ग्रुप की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एटम्स फ्री भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन फ्री भी पाए जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरीके से ये एटम फ्री भी पाए जाते हैं। भले ही बहुत ही कम देर के लिए रिएक्शन चेंबर के अंदर बहुत कम देर के लिए ये फ्री एटम फॉर्म होते हैं, ये काफी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उस वजह से ये काफी कम देर के लिए फॉर्म होते हैं। उसके बाद ये दूसरे किसी भी स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर और दूसरा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करते हैं। इसी तरीके से एटम के ग्रुप भी मौजूद होते हैं, जैसे कि इसके अलावा पहले हमने देखा कि एटम इंडिविजुअल भी मौजूद है, इंफ्रादी तौर पे भी मौजूद है, उसके अलावा एटम्स के ग्रुप भी मौजूद हैं, यानी जिसके अंदर 2, 3, 4 कितने भी एटम्स हो सकते हैं। एटम्स दे आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट व्हिच आर गोना मेक मैटर। कुछ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, और उन एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप दे आर द एटम्स
or group of atoms which confers to give देना the properties to the organic compound on which they are attached। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मौजूद होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप, अल्कोहल में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पढ़े जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एज फार एज कंसर्न द बायोमोलिक्यूल ओनली। जो बायोमोलिक्यूल में हमें पढ़ने हैं, बायोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे सिर्फ नोट किए हैं, उन्हें अभी हम देखते हैं। अब तो इस लिस्ट के अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले तो यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं, देन उनके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो OH आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। डोंट कंफ्यूज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद दिस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन वाटर यानी H2O जब वाटर ब्रेक करता है तो वाटर के ब्रेक करने से एक तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होती है, दूसरी OH आयन प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोक्सिल आयन इससे मुख्तलिफ है। हाइड्रोक्सिल आयन नॉर्मली न्यूट्रल होती है। हाइड्रोक्साइड आयन पर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है जब एटम पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जब किसी भी स्पीशीज में कोई चार्ज आ जाए तो वो आयन कहलाती है। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उसे हम एनाइन कहेंगे, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसे हम केटाइन कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन ये एनाइन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये न्यूट्रल है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नॉर्मली बॉन्डेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे यहां बॉन्डेड है। हाइड्रोक्साइड आयन ये फ्री होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन ये आयोनिक बॉन्ड बनाती है। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है OH। इसके साथ ये जो R अटैच है ना, ये R कुछ भी हो सकता है। ये एक दो कार्बन की बनी हुई चेन हो सकती है, बहुत सारे कार्बन से बनी हुई लॉन्ग चेन भी हो सकती है, अल्काइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। ये बेंजीन की रिंग भी हो सकती है, जिसे हम अराइल ग्रुप कह सकते हैं। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिन्हें हम अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये जो R ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर OH, C, मुश्तमिल एक कंपाउंड भी हो सकता है, या इसी तरीके से कार्बन की लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, उन्हें हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये जो R ग्रुप है ये बेंजीन की रिंग भी हो सकती है। बेंजीन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी 6 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है, तो इसे हम अराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है, इसे अल्कोक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो ये R कुछ भी हो सकता है। अभी R के बारे में, यानी ये जो रेडिकल ग्रुप है, इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं रखनी, सिर्फ याद रखना है कि ये रेडिकल ग्रुप है। ये अल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, ये अल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। हमें ये फंक्शनल ग्रुप जो है, अभी हमारा मैटर ये फंक्शनल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मैं बात कर रहा था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं वो अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल एक लार्ज क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिन कंपाउंड में आ जाते हैं उन कंपाउंड की एंड में OL लगता है, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टीज तो प्रोवाइड करेगा जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच है उनको। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उनकी वाटर में सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। ये मिथानॉल है, अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, सपोज करिए यहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप का हाइड्रोजन है और वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, इनमें एक बॉन्डिंग बन जाएगी। इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे प्रोटियोनिक बॉन्डिंग, प्रोटियोनिक ब्रिज भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रोटियोनिक ब्रिज भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है, यही खासियत है हाइड्रोजन ग्रुप की। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा उन्हें उनकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ा देगा, डिसॉल्व करने में उनकी हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। अल्कोहल में ये मौजूद होता है कॉमनली। अल्कोहल का सिंपल मेंबर दैट इज मिथानॉल मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका फॉर्मूला CH3OH है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बायोमोलिक्यूल जब आप पढ़ेंगे डिटेल से, तो बायोमोलिक्यूल में लिपिड्स जब पढ़े जाएंगे। लिपिड्स के अलग अलग टाइप हैं। वी हैव सिंपल लिपिड, वी हैव कॉन्जुगेटेड लिपिड, वी हैव ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से बने हुए हैं। जो ग्लाइसरोल है वो अल्कोहल ही होता है। उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजन ग्रुप ही मौजूद होता है। अब दूसरा दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है उसके दोनों साइड पर क्या मौजूद है उसकी बेस पर इसकी दो टाइप्स हो जाती हैं। अगर इस कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पर ये अगेन R, ये रेडिकल ग्रुप मौजूद है, यानी ये अल्काइल भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, ये अल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये R मौजूद है एक साइड पे तो हाइड्रोजन, दूसरे साइड पर अगर ये R मौजूद है तो ऐसे टाइप के कार्बोनाइल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। और एल्डिहाइड ग्रुप ये एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनमें मौजूद है। एल्डिहाइड्स में एक लार्ज क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनके एंड में Al लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल पे यहां पे लिखा है प्रोपेनल, ये जो Al लगा है ना, ये इसी ही एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से लगा है। हाइड्रोजन ग्रुप होता है तो OL लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो Al लगेगा। ओके, अच्छा, अब ये जब फंक्शनल ग्रुप है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो प्रोवाइड करेगा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है सब्सटेंस का, उसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा उनको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। जब हम बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमें डिफरेंट टाइप पढ़नी है। हमें मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं, हमें डाइसेक्राइड पढ़ने हैं, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड पढ़ने हैं। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज हम पढ़ेंगे, ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर। ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप वो ये एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है। वहां पे अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, अब एक टाइप तो कार्बोनाइल ग्रुप की एल्डिहाइड हो गई। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के दोनों साइड पर ये R ग्रुप मौजूद है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके दोनों साइड पर अगर ये रेडिकल ग्रुप मौजूद हैं, अब ये कुछ भी हो सकते हैं, अल्काइल भी हो सकते हैं, अल्कोक्सी भी हो सकता है ये ग्रुप, ये जो है अराइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, अल्कोक्सी भी हो सकते हैं ये रेडिकल ग्रुप। तो ऐसे टाइप के कार्बोनाइल ग्रुप को हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। कीटोन, अगेन कीटोन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उन्हें हम कीटोन्स कहते हैं। लार्ज क्लास है कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और कीटोन ग्रुप जिन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उनके एंड में 1 लगता है, 1 एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे एसीटोन लिखी है तो 1 उनके एंड में लगेगा, ONE1। कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। कीटोन और एल्डिहाइड में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एल्डिहाइड के कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन मौजूद होगा एटलीस्ट, लेकिन कीटोन में दोनों साइड हमें रेडिकल ग्रुप मिलेंगे, ये डिफरेंस है। अगेन कीटोन की भी प्रॉपर्टी काफी मिलती जुलती हैं एल्डिहाइड से। कीटोन ग्रुप जब हम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स में फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है। फ्रक्टोज को भी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है वो इस कीटोन की वजह से मिलता है, क्योंकि ये
फंक्शनल ग्रुप है, ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड जरूर करेगा जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ये अटैच्ड है। नाउ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप कुछ इस तरीके का दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और ये R अगेन रेडिकल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप के वजह से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड में ओइक एसिड लगता है, OIC एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जब ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये कुछ ना कुछ प्रोवाइड तो करेगा प्रॉपर्टीज अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस पर ये अटैच है। कार्बोक्सिल ग्रुप की खासियत है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैच होता है उनको एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट मीन बाय द एसिडिक प्रॉपर्टीज? एसिडिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जिनका सोर टेस्ट हो, जो कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दें, जो कि क्राउजिंग इन नेचर हो, यानी जंग लगवा दें, वो एसिड्स होते हैं। तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड का मतलब वो कम डिसोसिएट होंगे, कम हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो वीक एसिड बनाता है कार्बोक्सिल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैच होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, अच्छा, जब हम अगेन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल के अंदर जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा तो प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में भी एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वही मैंने यहां पे एग्जांपल लिखी है, दैट इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में और भी फंक्शनल ग्रुप है, कौन से वो भी क्लियर होंगे, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से कुछ अमीनो एसिड स्पेसिफिकली एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। उनके नाम के आगे एसिड लग गया क्योंकि इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से उनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। ओके, नाउ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट H2PO4, फॉस्फेट भी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उनके एंड में फॉस्फेट लगता है। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इस तरीके से उनके एंड में भी फॉस्फेट आएगा जिनमें फॉस्फेट मौजूद होगा। फॉस्फेट भी फंक्शनल ग्रुप है। फॉस्फेट की भी खासियत यही है कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद होता है उनको एसिडिक बना देता है। फॉस्फेट इज अ फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड भी बायोमोलिक्यूल ही हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं इनके मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, पेंटोज शुगर, nitrogenous base and then we have phosphate. Phosphate give them the acidic properties. Acidic properties जो मैंने अभी आपको कार्बोक्सिल ग्रुप के सेक्शन में बताई, वही एसिडिक प्रॉपर्टीज फॉस्फेट ग्रुप भी न्यूक्लियोटाइड को प्रोवाइड करते हैं। वही मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। जब ये बायोमोलिक्यूल इंडिविजुअली पढ़े जाएंगे वहां पर भी ये रिकॉल होंगे, लेकिन उनसे पहले भी इनका मालूम होना लाजमी है। नाउ अमीनो ग्रुप, ये जो NH2 आपको दिख रहा है ये अमीनो ग्रुप है। इस अमीनो ग्रुप के साथ ये R अगेन रेडिकल है, रेडिकल ग्रुप है। ये रेडिकल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये अराइल भी हो सकता है, ये अल्काइल भी हो सकता है, ये अल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। ये NH2 ये जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है उन्हें हम अमीन्स कहते हैं। अमीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ओके, और जिनमें NH2 लगा हुआ होता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड में अमीन एडवर्ड एंड होगा, AMINE अमीन। ये जो अमीनो ग्रुप है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अमीनो एसिड के अंदर जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन के जो मोनोमर अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो ग्रुप मौजूद होता है। अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है, अमीनो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप भी मौजूद होता है। देखिए जी, कार्बन, अमीनो एसिड ग्लिसिन का स्ट्रक्चर है। ग्लिसिन का स्ट्रक्चर है। ग्लिसिन में ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, C O, यहां पर H भी था, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसने अपना H दे दिया इस NH2 को, ये NH2 था, ये हाइड्रोजन लेके NH3 हो गया। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। ये अमीनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है हाइड्रोजन लॉस करके।
ये अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड को बेसिक प्रॉपर्टीज देता है, यानी ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, बिटर इन टेस्ट होता है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। ये अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप ने बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अमीनो एसिड ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं आयन की फॉर्म में, एक साइड पर नेगेटिव आयन, एक साइड पर पॉजिटिव आयन। द मॉलिक्यूल व्हिच हैव नेगेटिव आयन एट वन साइड एंड द positive charge at another side is said to be zwitter ion। अमीनो एसिड इस वजह से ज्विटर आयन भी कहलाते हैं। जब अमीनो एसिड हम पढ़ेंगे तो वहां पर ज्विटर आयन क्या है और क्या मतलब है इन चार्जेस का, वो डिटेल से पढ़ा जाएगा। अभी समझ लीजिए कि अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, ये जो ग्रुप बना हुआ है ये कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका हाइड्रोजन इसने लॉस कर दिया और वही सेम हाइड्रोजन इसने गेन कर दिया। ये NH3 है, ये NH3 है, NH3 इसने हाइड्रोजन लॉस करा, इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया। ये एक एसिड है, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अमीनो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच होगा उन्हें बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। फंक्शनल ग्रुप की खासियत है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हम उठा लें जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच होंगे उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो इसने अमीनो एसिड को बेसिक बना दिया। ओके, अब कुछ अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड टू मेंशन द नेम ऑफ आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। ये बेसिक अमीनो एसिड हैं, उनमें NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा होता है। एसिडिक अमीनो एसिड में इन कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होता है। अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि जब हम प्रोटीन और अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिटेल से बातें आएंगी कि एसिडिक अमीनो एसिड क्या है, बेसिक अमीनो एसिड क्या है। फिलहाल आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये अमीनो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड के अंदर नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड जो है उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके अंदर, उनको भी सेम ये बेसिक प्रॉपर्टीज ही प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड भी इनकी एग्जांपल है। नाउ सल्फाइड्रल ग्रुप, ये जो आपको SH दिख रहा है, SH ये सल्फाइड्रल ग्रुप है। SH R अगेन रेडिकल ग्रुप है, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, अल्कोक्सी हो सकता है। ये जो है SH ये सल्फाइड्रल ग्रुप है। सल्फाइड्रल ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच होता है उनके एंड में INE इन लगता है, INE इन लगता है। सल्फाइड्रल ग्रुप ये भी अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फाइड्रल ग्रुप भी मौजूद होता है। उन अमीनो एसिड को हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं। ये जो S है ना, ये यहाँ पे सल्फर है, उस वजह से उन अमीनो एसिड को सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मिथ्योनिन, सिस्टीन, मैंने एग्जांपल में सिस्टीन लिखा हुआ है, सिस्टीन अमीनो एसिड, सिस्टीन में ये सल्फाइड्रल ग्रुप मौजूद होता है। सल्फाइड्रल ग्रुप अगेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सल्फाइड्रल ग्रुप में ये टेंडेंसी है कि ये मॉलिक्यूल में स्टेबलाइजिंग ले आता है। जब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, देयर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, देयर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देयर इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट काइंड की बॉन्डिंग होती है। There is peptide bonding, there is hydrogen bonding, there is ionic bonding and there is disulfide bonding as well as। तो डायसल्फाइड बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस सल्फाइड्रल ग्रुप की होती है। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिर्फ बताई कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये प्रोवाइड करेंगे। ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ही होते हैं। नाउ इनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लासिफाई द कंपाउंड। अभी मैंने आपके सामने कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ETC, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की। अब जब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो इनकी अलग अलग टाइप्स भी हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ईच एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठाओ, उसकी स्टडी करो। तो साइंटिस्टों ने ये क्या एक तरीका निकाला है कि वो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर कंपाउंड की क्लासेस बनाते हैं, यानी ग्रुप्स बनाते हैं। क्लासिफाई का मतलब ये होता है कि ग्रुप्स में अरेंज करना। उसकी मदद से हमारे पास जितने भी इतने सारा ज्यादा नंबर जो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको हम ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं। ग्रुप्स में अरेंज करने से ये होता है कि हम एक ही टाइम में एक मॉलिक्यूल की, एक कंपाउंड की अगर अच्छे से स्टडी कर लें तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप की मदद से क्लासिफाई किया जाता है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सेम क्लास में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जिनमें OH है उनको सेम क्लास में, अल्कोहल की क्लास में रखा जाएगा। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है उनको एल्डिहाइड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। जिनमें कीटोन ग्रुप है उनका कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप देखा, उनको कीटोन की कैटेगरी क्लास में रख दिया। कार्बोक्सिल ग्रुप देखा, उनको कार्बोक्सिल ग्रुप की कैटेगरी में रख दिया। तो इस तरीके से इतना ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे डील करना इजी हो जाता है बाय क्लासिफाई देम इनटू स्पेसिफिक ग्रुप। उसमें ये फंक्शनल ग्रुप ही हमारी हेल्प करते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर, ये जो मैंने आपके सामने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिए हैं जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटानोइक एसिड, ये सारे जो नेम जो हैं ये नेम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं और उन रूल्स को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर दो तरीके का होता है, आयोपिक नेम्स, कॉमन नेम्स के जरिए नोमेनक्लेचर परफॉर्म की जाती है। नोमेनक्लेचर में भी फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ही नाम दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उनके आगे OL लगेगा, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा Al लगेगा, कीटोन होगा 1 लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा OH एसिड लगेगा। इसके अलावा अगर सल्फाइडल मौजूद है तो ईन लगेगा, फॉस्फेट मौजूद है फॉस्फेट लग जाएगा। तो इस तरीके से नेम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम परफॉर्म किया जाता है उसमें भी फंक्शनल ग्रुप का ही रोल होता है। नाउ नंबर 3, रिएक्टिविटी। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, किन कंडीशन में रिएक्ट करेगा, ये भी चीजें फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करते हैं। यहां तक फंक्शनल ग्रुप के बारे में था जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो कि बायोमोलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस की है। नाउ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स का, डेट इज बायोमोलिक्यूल। नाउ मैंने आपको बताया था कि those molecule which we get from living organism are said to be biomolecule, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन है दे आर द कार्बन, इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्टिंक्शन भी बताई है L1 लेक्चर 1 के अंदर। अगर आप इसे किसी ने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जरूर देख सकते हैं, आपको कंपाउंड, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल इनके बारे में डिफरेंस पता चल जाएगा। नाउ दे आर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इनको प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल 4 कैटेगरी है हमारे पास बायोमोलिक्यूल की, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इनको हम बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बायोमोलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके लिए हमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, उसे हम केमिकल एनालिसिस कहते हैं। केमिकल एनालिसिस के अंदर हमें कुछ लिविंग पार्ट लेने होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हम लीफ भी ले सकते हैं, फ्रेश ग्रीन लीव्स, या हम किसी रेट का या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लीवर पीस भी ले सकते हैं। सपोज करिए हमने रेट का लीवर पीस ले लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्यों की जाती है? ताकि हम प्रूफ कर सकें कि वाकई ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोमोलिक्यूल के बने हुए हैं। उसके लिए हमें लेना होगा एक रेट का लीवर पीस। रेट का लीवर पीस लिया, उसको हमने एक कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। रेट के लीवर पीस को हमने एक कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। ये कंटेनर क्या है? बेसिकली मोटर एंड पिस्टल है। ये मोटर एंड पिस्टल है। इसके अंदर हम एक एसिड ऐड करेंगे, दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमने ऐड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, TCA। TCA ऐड करने के बाद हम इसको लीवर को ग्राइंड करेंगे, इसको पीसेंगे। पीसने के बाद हमें जो मटेरियल मिलेगा उसे हम सिलरी कहेंगे। अब इस सिलरी के अंदर दो तरह की फ्रिक्शन होगी। उन फ्रिक्शन को सेपरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीव। जिस तरीके से हम चाय में से पत्ती को अलग करते हैं, टी लीफ को अलग करते हैं, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई किया जाएगा सिलरी पर। एक सीव लिया जाएगा, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर लिया जाएगा, उसमें से दो फ्रिक्शन सेपरेट किए जाएंगे।
जो चीजें हमने सपोज करिए ये एक सीव हमने यूज करा है, जो सिलरी हमें मिली थी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालने के बाद, ग्राइंड करने के बाद जो सिलरी मिली थी, उस सिलरी को हमने इस सीव से पास किया। सीव से जब पास करेंगे तो कुछ सब्सटेंस फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे, वो सब्सटेंस फिल्टरेट कहलाएंगे, एसिड सोल्यूबल पूल कहलाएंगे। जो मटेरियल इस सीव के ऊपर रह जाएगा, जिस तरीके से टी लीफ पत्ती ऊपर रह जाती है सीव छन्नी के, तो उन्हें हम रेटेंटेट कहेंगे और एसिड इनसोल्यूबल पूल कहेंगे। यहां देखिए हमारे पास सिलरी थी, सिलरी यानी जो चटनी हमें मिली थी ग्राइंड करने के बाद, उस सिलरी को हमने जब सीव से पास किया, छन्नी से पास किया, तो हमें एक तो फिल्ट्रेट मिला नीचे, और ऊपर जो मिला वो रिटेंटेट मिला हमें। फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सोल्यूबल पूल होगा, इनके अंदर बायो माइक्रोमोलिक्यूल होंगे। दूसरा जो रेटेंटेट है, इसके अंदर एसिड इनसोल्यूबल पूल है, क्योंकि ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है इसमें ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, इस वजह से एसिड इनसोल्यूबल पूल के रहे हैं इसे। इसके अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। अब हम उनको बायो मोलिक्यूल की जो टाइप्स है उनको ही देखते हैं। पहले बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड देन बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब तक हमने क्या बात कर ली है? अब तक हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिए हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच कन्फर द प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन विच दे आर अटैच्ड। उनके बाद हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात की, उनकी इंपॉर्टेंस की बात की, देन हमने बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन देखी और ये देखा कि केमिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब हम बायोमोलिक्यूल की जो दो टाइप्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो यानी लाइफ, वो मोलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। माइक्रो, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, मोलिक्यूल यानी मोलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी ऐसे बायो मोलिक्यूल जो कि स्मॉलर हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, सो दे आर स्मॉलर इन साइज। बायो मैक्रो, बायो का मतलब होता है लाइफ, मैक्रो मींस लार्ज, ये लार्ज होते हैं मॉलिक्यूल, ये बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, इस वजह से इनको लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल कहा जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम वेट निकालते हैं, उसके एटम्स का जो एटॉमिक मास है उनको ऐड करके हम एक वेट निकालते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट 20 to 800 डाल्टन के दरमियान रेंज में होगा। लेकिन जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, डाल्टन यूनिट है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 20 to 800 डाल्टन, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन से भी ज्यादा। बायो माइक्रोमोलिक्यूल फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जो स्लरी का फ्रिक्शन हमें नीचे मिल गया, दैट इज फिल्ट्रेट, उसके अंदर ये मौजूद हैं। ये रेटेंटेट के अंदर मौजूद होते हैं, यानी स्लरी का वो फ्रिक्शन जो कि हमें सीव के ऊपर मिला उसके अंदर मौजूद हैं। ये एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर मौजूद होते हैं, ये एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर मौजूद होते हैं। बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर एग्जांपल है मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड। बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स। साथ साथ आपको नोट भी करना है, ये बायोमोलिक्यूल की टाइप्स हैं, बायोमोलिक्यूल की टाइप हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ही नहीं बने हुए, बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी मौजूद हैं। मैंने आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस भी बताया है। दोज मॉलिक्यूल इन व्हिच कार्बन प्रेजेंट एज अ बेसिक element and covalently bonded with the hydrogen are said to be organic molecule. Inorganic molecule are those molecule in which carbon not present as a basic element and not covalently bonded with the hydrogen. Inorganic molecule होते हैं। लिविंग बॉडी के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही नहीं, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं। अब उनको देखने के लिए हम एक और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिन्हें हम एश एनालिसिस कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल को देखने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखने के लिए तो हमने केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करा। अब अगर हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी देखने हैं तो हमें एश एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। एश यानी राख। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगेन फ्रेश ग्रीन
लीफ लेने होंगे, उन लीफ को एवापोरेट यानी उनका वाटर एवापोरेट करना होगा। वाटर एवापोरेट करने के बाद हम उन्हें हीट सप्लाई करेंगे, उनको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हमें एश मिलेगी, राख मिलेगी। उस राख के अंदर हमें एलिमेंट मिलेंगे जो ये सजेस्ट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के भी बने हैं। तो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एश एनालिसिस। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू select some green fresh leaf. This green fresh leaf undergone into the evaporation. Then after the evaporation, this is the sign of delta. Delta means we have to give some heat to that structure. Whenever we give heat to that substance, we get ash along with carbon dioxide and water molecule, that is water vapor in the form of water vapor. ये जो एश है, ये जो राख है, इस एश के अंदर क्या मौजूद होगा? सोडियम, डेट इज Na, कैल्शियम Ca, डाइवेलेंट केटाइन वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, S, फॉस्फोरस P। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला कि जो कंपोनेंट ऑफ लाइफ हैं, लाइफ के दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ दो हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो ये सिंपल से एलिमेंट हैं। सिर्फ इतने ही एलिमेंट नहीं, और भी बहुत ज्यादा एलिमेंट हैं, इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको 16 बायो एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, और उनमें से कौन से 6 एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 98% ऑफ दी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, कौन से बायो एलिमेंट है उनके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो बेसिकली आज के लिए यही था। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एक क्विक रिकैप दे देता हूं आपको। फंक्शनल ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच प्रोवाइड प्रॉपर्टीज ऑन दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन व्हिच दे आर अटैच्ड, जिन पर अटैच है उनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया, और ये भी बताया साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टीज ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोवाइड करते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेल्प टू क्लासिफाई द कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर यानी नेम देना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, रिएक्टिविटी किससे रिएक्ट करेंगे किससे रिएक्ट नहीं करेंगे ये भी ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करते हैं। देन बायोमोलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, उनको प्रूव करने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट इज केमिकल एनालिसिस परफॉर्म किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूज किया, स्लरी मिली हमें। स्लरी के अंदर दो तरह की फ्रिक्शन थी, फिल्टरेट एसिड सोल्यूबल पूल, रेटिनटेट एसिड इनसोल्यूबल पूल। यहां बायो माइक्रोमोलिक्यूल थे और रेटिनटेट के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल थे। उनके डिफरेंसेस की बात की, स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज, लो मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर वेट, प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल, प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल पूल, और उनकी एग्जांपल्स की बात की। देन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नहीं बने हुए होते हैं, सिर्फ बायो मॉलिक्यूल के नहीं बने हुए होते हैं, उनके अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। उनका प्रूफ करने के लिए हमने ये एश एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। ओके, आज के लेक्चर में आपके पास कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।